Now let us see what is Hinoch-Schönlein purpura. It's also called as immunoglobulin A vasculitis. Before this, we have discussed about immunoglobulin A nephropathy. It was mainly focused on the kidney disease, as a kidney disease, but this particular disease, it is focused to be a systemic disease. Okay, so what happens is that a patient, a little child is there, and he's having some sore throat, URTIs he's suffering from, and there will be, since it is an infection, the body will produce more immunoglobulin A and antiseptic paint of the mucosa, and during the production, abnormal, poorly glycosylated immunoglobulins will be formed, and then the body will recognize these abnormal IgA as some foreign material, and it will form antibodies against it, and there will be formation of immune complexes which will circulate and deposit in the small vessels, and hence it is called as immunoglobulin A vasculitis. And since they're getting deposited in the small vessels of the skin, of the gut, of the joint, then it will get deposited in the glomerular mesenchyme in the kidney after passing through the while passing through the capillary loop of the glomerulus. So this is a systemic small vessel immune complex vasculitis. It is going to the skin, gut, joints, and the kidney. So yeah, it is leukocytoclastic vasculitis. Why? Because neutrophilic vessel injury will be there, and IgA deposit will be there, then complement activation, it will call out the neutrophils, and it will lead to vessel injury, and there will be purpura. That purpura will be a palpable purpura. Let us look how a palpable purpura looks like. Very hard. HSP is the disease. Shivam Pandey is okay. So these are like the palpable purpura is there, okay. So a kid is there, okay. Red rash over the body, blood in the pee, blood in the poo, then swelling over the hands and feet, joint pain and swelling will be there. ठीक है, तो ये है ऐसे बच्चों पे ये होता है. ठीक है, तो हम क्या बेसिकली क्या देख रहे हैं इसमें. ठीक है, कहाँ तक आ गए थे हम. ठीक है, यहाँ तक आ गए थे. और इसका क्लासिक टेट्राड है, पर्प्यूरा होता है जो कि पैल्पेबल है, यूजुअली ऑन बटक्स, लेग्स, एक्सटेंसिव सर्फेसेस. नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा. व्हाई पैल्पेबल? बिकॉज इन्फ्लेम्ड वेसल्स लीक द ब्लड एंड इट कॉज एज एडिमा. एब्डोमिनल पेन इज देयर. क्यों? क्योंकि जो गट के जो स्मॉल वेसल्स है उसमें वास्कुलाइटिस हुआ है, तो इट कैन कॉज कॉलिकी पेन, जीआई ब्लीडिंग, वॉमिटिंग एंड इंट्यूसिसेप्शन. ठीक है, ये क्या अच्छे से देख लेना. आर्थराल्जिया, आर्थराइटिस, क्योंकि जॉइंट के जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे भी उसने वास्कुलाइटिस किया है, तो नीज और एंकल्स में पेन हो जाएगा. इट्स माइग्रेटरी पेन. देन किडनी में मेसेंजियम में जाके वो डिपॉजिट हो गया है on IgA. So the renal region, it resembles like IgA nephropathy, and okay, it can produce all these things which is important in this chapter. Microscopic hematuria, gross hematuria, nephritic syndrome, nephrotic syndrome, RPGN rarely cause करता है. Morphology में क्या क्या देख सकते हैं बेसिकली हम किडनी में लाइट माइक्रोस्कोपी में mesenchyme का proliferation मिल सकता है. Sometimes diffuse proliferative glomerulonephritis मिल सकता है. सीवियर केस होगा तो क्रिसेंट बनेगा. ठीक है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस हॉलमार्क क्या मिलेगा, mesenchyme में डिपोजिशन हो रहा है. ठीक है, तो ये IgA के डिपॉजिट मिलेंगे, C3 भी मिलेगा. ठीक है, स्किन बायोप्सी में ये palpable ये पर्प्यूरा है, तो ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस है, तो स्मॉल वेसल्स क्या फिब्रिनोइड नेक्रोसिस शो करेंगे, न्यूट्रोफिल शो करेंगे, न्यूक्लियर डस्ट ल्यूकोसाइटोक्लेशिया शो करेंगे. ये मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बाद में. ओके, HSP और IgA नेफ्रोपैथी में डिफरेंस क्या है, इसमें कि किडनी डोमिनेंट है, इसमें सिस्टमिक फॉर्म है, लेकिन इम्यूनोलॉजिक मैकेनिज्म सेम है. ठीक है, और हमने देखा था दैट जो उसका ड्यूरेशन है ना उसमें डिफरेंस होता है. लाइक तुमको अगर बच्चे को एक दो हफ्ते के बाद रैश आ रहा है, मतलब बच्चे को सोर थ्रोट हुआ और उसके बाद एक दो हफ्ते के बाद रैश आया है, तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट HSP. वेरएज अगर एक दो दिनों में आया है तो दैट इज IgA नेफ्रोपैथी. ठीक है, तो म्यूकोजल इन्फेक्शन ट्रिगर्स IgA ओवर प्रोडक्शन. ठीक है, बाद में आता है कि सीवियर प्रोग्नोस्टिक हॉलमार्क्स. वो प्रोग्नोसिस कब हो सकता है, जब ये सारी कंडीशंस है. ठीक है, स्किन में, गट में, जॉइंट्स में, किडनी में जा रहा है. क्लासिक टेट्राइड इसका पर्प्यूरा, पेन, पॉलीआर्थराल्जिया एंड पी एब्नॉर्मलिटी. ठीक है, तो ट्रीटमेंट में हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं. यूजुअली मोस्टली ये सेल्फ लिमिटेड होता है, लेकिन सपोर्टिव में हाइड्रेशन देना है, एनाल्जेसिक देने हैं क्योंकि पेन हो रहा है, अब स्टेरॉइड्स देने हैं, सीवियर एब्डोमिनल पेन है क्योंकि, और सिग्निफिकेंट रीनल इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए स्टेरॉइड देना है. इम्यूनिटी का इम्यून सप्रेशन करना है. तो सीवियर क्रिसेंटिक डिसीज हो तो इम्यूनो सप्रेशन समटाइम्स देते हैं हम. डिफरेंशिएट फ्रॉम ल्यूपस नेफ्राइटिस, हमें HSP को ल्यूपस से डिफरेंशिएट करना है. इट इज वेरी डिफरेंट थिंग ना, दोनों के एंटीजन अलग है. ठीक है, तो IgA डोमिनेंट है, इसमें फुल हाउस इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, लाइक गैम CQ वाली चीज़, ऐसे फीचर्स मिलते हैं. इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस चाइल्ड में होता है, पर्प्यूरा है. अभी आईना में के थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इम्यूनोफ्लोरेसेंस फाइंडिंग क्या है, मेसेंजर IgA डिपोजिशन. इसमें हम देख रहे हैं इज नथिंग बट IgA वास्कुलाइटिस, और इसका दूसरा नाम क्या है, HSP, Hinoch-Schönlein पर्प्यूरा. और मोस्ट कॉमन स्किन लीजन इज दिस, रीनल लीजन इज विच रिजेंबल्स दिस, एंड इंपॉर्टेंट GI कॉम्प्लिकेशन इज इंट्यूसिसेप्शन. ठीक है, तो बेसिकली फ्लो ऑफ डिसीज, URTI हुआ, ये सब हुआ, देख लो अच्छे से. वाई इज पर्प्यूरा ये पैल्पेबल क्यों है, ये वाई इज HSP लिंक टू IgA नेफ्रोपैथी, वाई कैन इंट्यूसिसेप्शन अकर, एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस फाइंडिंग, और वाई डू एडल्ट्स हैव पुअर प्रोग्नोसिस. ठीक है, इसके आंसर देख लो अभी क्या भी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आई एम मोर इंटरेस्टेड टू सी वाई कैन इंट्यूसिसेप्शन अकर. थर्ड क्वेश्चन, बिकॉज देखो हमने क्या देखा था कि गट के जो ब्लड वेसल है उसमें जो स्मॉल ब्लड वेसल है उसमें वो ड्रग के डिपॉजिट हो गया था, राइट. सो वहाँ पे उसने इन्फ्लेमेशन कॉज किया, वास्कुलाइटिस हुआ, एडिमा हुआ, हेमोरेज हुआ, थिक एंड बॉबल वॉल हो गई है. दैट एक्ट्स एज अ लीड पॉइंट एंड इट कॉजेस वन सेगमेंट टेलीस्कोप्स इनटू अनदर. इट्स लाइक वन सेगमेंट टेलीस्कोप्स इनटू अनदर एंड इट लीड्स टू इंट्यूसिसेप्शन. मुझे फिर भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ठीक है देखते हैं कभी, तो अभी देखेंगे. चलो कॉपी पेस्ट. इंट्यूसिसेप्शन इज व्हाट, ओके असं जे ब्लॉकेज असतं ना, म्हणजे असं ते एक गोष्ट अशी त्यात जाते आणि तिथं ब्लॉकेज होतो. ओके, ओपन आणि असं हे ब्लॉकेज असतं, where one segment of the intestine telescopes into an adjacent segment. इथला जो स्मॉल इंटेस्टाईनचा जो सेगमेंट आहे ना तो गेला आहे लार्ज इंटेस्टाईनच्या ह्याच्यामध्ये, असेंडिंग कोलॉनच्या सेगमेंटमध्ये. सो वन segment it telescopes into the other segment, that is intussusception. This telescoping causes bowel obstruction, restrict the blood supply, can lead to tissue death, infection and perforation. ठीक है, मस्त चीज़ है यार ये intussusception. ठीक है, तो bowel का, because bowel wall vasculitis क्या करता है, edema, hemorrhage, thickened bowel wall. So
दैट लीड्स टू वन सेगमेंट टेलीस्कोपिंग इनटू अनदर एंड इंटरसेप्शन, दैट इज अ क्लासिक कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि ये सब हो रहा है इसलिए, ठीक है। अब अगला मस्त क्वेश्चन क्या था कि व्हाई डू एडल्ट्स हैव पुअरर प्रोग्नोसिस, क्योंकि दे टेंड टू हैव मोर सीवियर रीनल इन्वॉल्वमेंट, मोर क्रिसेंट्स, मोर प्रोग्रेसिव न्यूरल डैमेज, ग्रेटर रिस्क ऑफ सीकेडी, इसलिए उनका प्रोग्नोसिस बच्चों से गंदा है, ठीक है। अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस फाइंडिंग हमें पता है क्या होगा, और व्हाई इज लिंक टू दिस वी नो, क्योंकि इसमें ये सिस्टमिक डिसीज है, इसमें काफी सारे ब्लड वेसल इन्वॉल्व है, वन ऑफ द ब्लड वेसल अगर किडनी का होगा तो उसमें जाके मेसेंजर में जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन ए और सिमिलर रीनल मॉर्फोलॉजी बताएगा, लाइक वहाँ पे डिपोजिशन होगा, ठीक है। ये देन लास्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई इज पर्टुला पैल्पेबल, क्योंकि स्मॉल वेसल का इन्फ्लेमेशन होता है, ल्यूकोसाइटोप्लास्टिक वास्कुलाइटिस है बेसिकली। मुझे इसका ये ना डेफिनेशन देखना है, ल्यूकोसाइटोप्लास्टिक इन्फ्लेमेशन वास्कुलाइटिस, ल्यूकोसाइटोप्लास्टिक वास्कुलाइटिस, LCV, ल्यूकोसाइटोप्लास्टिक वास्कुलाइटिस, इट इज अ स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस, छोटी वेसल का वास्कुलाइटिस, वास्कुलाइटिस मतलब वेसल का इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल कॉज्ड बाय न्यूट्रोफिल डिस्ट्रक्शन, ल्यूकोसाइटोक्लासिस, न्यूट्रोफिल जे आहेत बेसिकली मॅक्रोफेज सारखं, म्हणजे फेगोसाइट त्याचं काम असतं, काही दिवसानंतर ते मरतात, त्यांचं डिस्ट्रक्शन झालं की हे साइटोप्लास्टिकवाला वास्कुलाइटिस होतो, रिझल्टिंग इन इची और पेनफुल पॅल्पेबल पर्टुला, ठीक आहे। तर हे काय म्हणतंय पॅल्पेबल का आहे, कारण की इथं ल्युकोसाइटोप्लास्टिक वास्कुलाइटिस होते, ओके, न्यूट्रोफिल संपलेत, मग ते इन्फ्लेमेशन झाले आणि त्याच्यामध्ये वेसलची वॉल ती डॅमेज झाली आहे आणि RBC लीक आउट होतात, कॉझिंग द पर्ट्युला ऑब्वियसली, आणि इन्फ्लेमेशन एडिमा होतं, आपल्याला माहिती इन्फ्लेमेशन म्हणजेच ते सगळं अल्ब्युमिन वगैरे, म्हणजे तिथून ते असं लिकेज होतं आणि तिथं ते फ्लूइड अक्युमुलेशन होतं आणि दॅट मेक्स द लीजन रेज्ड और पॅल्पेबल. नॉट इट्स नॉट जस्ट ब्लीडिंग बट बिकॉज देयर इज एडिमा दैट्स व्हाई इट इज वास्कुलाइटिक, इट इज अ पैल्पेबल पर्ट्युला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक रीजन, हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला मोस्ट कॉमन किस एज में मिलता है, ये हमें HSP हिनॉक बट शुलाइन पर्ट्युला, 3 to 8 years, ओके फाइन।